Measures of national income. So first we need to see what we mean by the term income. It is the how much you earn in given period of time. So earning in given period of time, given period of time. Then we listen the word wealth. Wealth is your income accumulated over period of time. So when you accumulate income over some period of some significant period of time, you incur wealth with you, associated with you. Then we have a term domestic output. Domestic output, it is an output within a defined physical boundary. So the term domestic, so we are defining a physical boundary. On that physical boundary we have some output, production कह लो, ये सब हो गया. Then we have national output. National output, it is the output produced by a nation including remittances of foreign settled Indian diaspora. So it is the national, what a nation produces output in nationals की जो income है जो बाहर जाके diaspora settle हुआ है plus nation का output is your national output. Then we see a term real output. Real output है कि it is expressed in terms of goods and services as a basket of goods and services. So basket of goods and services. Then we have nominal output. Nominal output is expressed in terms of monetary value. So we have a monetary value associated or market value, or we can say market value. So India में monetary value or market value is your rupees. ठीक है. So this rupee is derived from Sanskrit word, from Sanskrit word rupayanka. Means silver, meaning silver, जो silver होता है हमारा तो वो है ये. Then we have national income. We have it is the labor and capital. So labor plus capital किस चीज का? Of the country acting on its natural resources. तो ये country अपना labor और capital लगाती है resources पे, उसके खुद के resources जो उसके reach में है, on resources और natural resources, and जो उससे जो income generate होती है annually, our income generate होती है annually in terms of goods and services. जो goods and services वो produce हो रहे हैं उनसे जो income generate हो रही है is national income. Once again, the labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain amount of goods and services. Also, the market value of all final goods and services is national income. तो the final value of these इससे goods and services बने और natural resources goods and services बने. So this is natural resources. उससे जो हमें final हमारी जो income हो रही है market value, final market value or monetary value से we refer as the national income. So likewise we can understand it. So I can say in other terms, I am trying to say that national income, your national income is equals to your national product. Your national product मतलब क्या पूरा produce हुआ is also equal to your national expenditure. कैसे? क्योंकि जितना प्रोड्यूस हुआ है वो उसे लोग खरीदेंगे तो एक्सपेंडिचर होगा और उससे इनकम जनरेट होगी. तो ये तीनों इक्वल होते हैं. अभी कैसे इक्वल होते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग अ वेरी सिंपल सिस्टम.
ये मान लेते हैं, इसमें हम गवर्नमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग टैक्सेस एंड देयर इज ऑल्सो नो सेविंग इन द इकोनॉमी। तो मतलब मनी कहीं स्टोर नहीं हो रहा है। सेविंग इज ऑल्सो फ्यूचर एक्सपेंडिचर। सेविंग का मतलब कि हम फ्यूचर में कभी अपनी सेविंग्स यूज करेंगे तो वो भी यूज होता है। तो मनी इज ऑलवेज बीइंग इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी। सो वी आर कंसिडरिंग अ वेरी सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें हम गवर्नमेंट भी जोड़ देंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने बैंक्स को भी ले आएंगे, तो 4 सेक्टर हो जाएगा। स्टिल जो ये फ्लो रहेगा वो इक्वल रहेगा, किसी भी पॉइंट में वो फ्लो इक्वल रहेगा बिकॉज ये चीज इक्वल है, हमारी इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ है हमारे हाउस होल्ड, ये है मेरी फर्म। तो हाउस होल्ड मतलब जहां मैं रह रही हूँ और फर्म जहां मैं काम कर रही हूँ। तो जहां मैं काम कर रही हूँ तो आई एम गिविंग सम फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कैसे हो सकता है कि मैं लेबर हूं तो मुझे वेज, तो आई एम वर्किंग फॉर द फर्म। हो सकता है मैं कोई इंटेलेक्चुअल काम कर रही हूँ, मतलब कुछ काम कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई सर्विसेज टू द फर्म। तो इस सर्विसेज के रिटर्न में मुझे इनकम मिलेगी, मुझे सैलरी मिलेगी। सो आई विल गेट फैक्टर। ऑरेंज से एरो का ऑरेंज मैच करना है, ठीक है। तो मुझे फर्म क्या देगी, फैक्टर पेमेंट फॉर माई सर्विसेज। नाउ अब क्या होगा, मुझे पेमेंट मिलेगा तो आई विल बी एबल टू ऑल्सो बी अ कंज्यूमर। मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसा आया तो फर्म विल बी एबल टू ऑफर सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स टू मी कि भाई ले लो। तो फर्म सेल करेगी, सेल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मुझे सेल करेगी कि ले लो। अब सिंस मेरे पास, मैं गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करूंगी, मेरे पास पेमेंट मुझे मिला है, आई हैव मनी, तो उस मनी का मैं क्या करूंगी, इसी ब्लू एरो को फॉलो करो, ब्लू एरो टू ब्लू एरो, आई विल पे फॉर द सर्विसेज। कंज्यूमर्स पे, कंज्यूमर्स विल पे, तो कंज्यूमर देंगे फॉर द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज बने तो उसमें लेबर कॉस्ट होगा, उसमें लैंड का रेंट कॉस्ट होगा, उस पर सारे चीजें जुड़ के मुझे उस सेलिंग प्राइस पे मिलेगा। तो आई विल बी पेइंग फॉर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिससे ये चीज प्रोड्यूस हुई है। तो जो कंपनी को ये चीज मिलेगी, इट इज इट्स फैक्टर इनकम, वो कंपनी की है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होगा, इज द इनकम बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न द सर्विसेज दे डिलीवर। सो फैक्टर इनकम में क्या क्या आया, रेंट आया, वेज आया, इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट आया, विच वी हैव कवर्ड अंडर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब इसी में ही आई कैन मेक अ कमेंट कि व्हाट आई कैन से, ये हम बोल सकते हैं इसमें कि सपोज कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by the nation. So it is produced by the nation. मतलब ये सब मैंने ले लिया। Value of all final goods and services is equals to what? Factor income earned is equals to factor income earned. जितनी factor income earn हुई by the factor of production, by factor of production FOP, that belonging to, अब वो किसके है, belonging to that nation, to the nation only. और फिर further इसमें I can say कि ये सब अब और किसके इक्वल हुआ, एक्सपेंडिचर मेड ऑल्सो इक्वल्स टू दी एक्सपेंडिचर मेड. सो एक्सपेंडिचर मेड by the FOP that also belongs to the nation. तो ये सब नेशन को बिलोंग कर रहा है. तो ये जो चीज मैंने बोली वाइट से जो लिखी है, दिस इज योर नेशनल आउटपुट. इसको हम टर्म देते हैं नेशनल आउटपुट.
इसको हम देते हैं नाम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, और इसको हम नाम देंगे नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल एक्सपेंडिचर। तो ये सब एक दूसरे के बराबर है, ये सब एक दूसरे को बिल्कुल बराबर दे रहे हैं। जैसे फाइनल वैल्यू मतलब जितना आउटपुट बनाए उतनी ही इनकम जनरेट होगी, उतना ही एक्सपेंड होगा। ऐसे हम देख सकते हैं, यहाँ हम पॉइंट ए माने, यहाँ बी माने, और यहाँ कहीं बीच में, यहाँ कहीं बीच में आए मैं सी मान लूँ, तो जो मनी फ्लो है ए पे, सी पे, बी पे, ये सब इक्वल है, प्रोवाइडिंग नो सेविंग्स, नो टैक्सेशन, ये सब। अगर चलो इसमें मैं गवर्नमेंट भी ले आऊं, इसमें मैं गवर्नमेंट भी ले आऊं, सपोज आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट भी इसमें है पीछे का चलते हैं, इसमें सपोज ऐसे कि गवर्नमेंट भी है, तो यहाँ हो गई गवर्नमेंट, सपोज यहाँ हो गया हाउस होल्ड, हाउस हो गया, हाउस होल्ड हो गए, यहाँ हो गए बैंक्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ हो गए फर्म्स, यहाँ हो गए फर्म्स। तो उसी को मैंने अब एक्सपैंड कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, साइकिल चलाएगी। कैसे, यहाँ से सेविंग्स, गवर्नमेंट अपनी सेविंग बैंक्स को देगी, और गवर्नमेंट यहाँ से बोरो करेगी, यहाँ से बोरो करेगी, बोरो ऐसे देगी, बैंक्स को पैसा देगी, और यहाँ से क्या लेगी, सेविंग्स लेगी, सेविंग्स लेगी, बैंक की सेविंग्स यूज करेगी, इनको पैसा देगी, इनकी सेविंग्स लेगी, ऐसे साइकिल चलेगी। फिर हाउस होल्ड से क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ से टैक्स लेगी, और जो उनकी इनकम है हाउस होल्ड की, वो यहाँ क्या देंगे, एज सेविंग्स देंगे, एज सेविंग्स देंगे। फिर क्या होगा, फिर ट्रांसफर फॉर पेमेंट, तो से ट्रांसफर ऑफ पेमेंट होगा, टीओपी होगा, और फिर सैलरीज भी जाएंगी, ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे, फिर सैलरीज भी जाएंगी, यहाँ से ट्रांसफर पेमेंट सबसे सैलरीज हो गई। फिर यहाँ पेमेंट्स मेड without any quid pro quo, scholarships, so government gives scholarships, some benefits, ठीक है, फ्री पेंशन्स देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट गिव्स दीज बेनिफिट्स, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। देन और क्या होगा, अब हो सकता है लोग यहाँ से बोरो भी करेंगे, यहाँ से बोरो भी करेंगे। देन और क्या होगा, फिर इस साइड चलते हैं, फर्म से होगा, फर्म्स इनको कॉर्पोरेट टैक्स देगी, कॉर्प टैक्स देगी। फिर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इनको देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो गॉव का भी कुछ एक्सपेंडिचर होगा यहाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देन इनके पास यहाँ से फिर हाउस होल्ड भी कंज्यूम करेंगे, राइट। फिर बैंक्स के साथ फर्म्स का इंटरेक्शन होगा, तो बोरो, उनको बोरो करना होगा फर्म्स को मनी बैंक से, तो ऐसे जाएगा, और उनको सेविंग्स अपनी डिपॉजिट करानी होगी, तो वो बैंक्स को फर्म्स देंगी अपनी सेविंग्स। देन वी कैन से तो पूरा ये नेटवर्क है। तो एक तरह से देखो हर जगह जो साइकिल्स बन रही हैं, एंड एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड द इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इज द इकोनॉमी। जो हमने तीन चीजें बोली थी, आउटपुट इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर फॉर अ नेशन, नेशनल लेवल पे, वो यहाँ भी ट्रू बैठेगा अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूँ तो यहाँ से वी कैन से जो ये है हमारा फैक्टर पेमेंट, और जो फैक्टर पेमेंट के उल्टा होगा, फैक्टर पेमेंट की जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ किसी फर्म को, तो लोग फिर उसे कंज्यूम करेंगे, फिर होता है कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन, तो हर जगह के एरो बिल्कुल आर गोइंग, ये यहाँ जा रहा है तो फिर यहाँ आ रहा है, बैंक और इसका और इसका, सेविंग्स, बोरोइंग्स, देन गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, वी आर गिविंग टैक्स,
फिर वी आर ऑल्सो गेटिंग सैलरीज, तो फिर वहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, फिर वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स आ रहा है, तो ये सब मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है एंड देयर इज अ नेट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और वो सबको वो इक्वल बैठेगा जो हम अपने पैरामीटर्स लेते थे. वी हैव सीन दिस. नेशनल इनकम, अब कुछ प्रॉपर अप्रोचेस होनी चाहिए टू मेजर. सो वी हैव इनकम मेथड, वी हैव वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड, देन वी हैव एक्सपेंडिचर. हमने इन तीनों को ही इक्वल बनाया था, तो ये तीनों ही हमारे मेजर्स है, इनमें से कोई भी एक से हमारा निकल सकता है. इन डिटेल वी विल कवर दिस अप. ये एक एक करके क्या बताते हैं. वन टर्म वैल्यू एडेड. सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन. It refers to the contribution of labor and capital. So it is क्या है, contribution of any of the factors of production during any stage. जो contribution लगता है हर stage में, contribution at stages जो लगते हैं by factors of production, ये वो value addition है. We are adding value to the product. तो it is like it is factors of production during any stage the product happens to undergo. जो भी प्रोडक्ट जा रहा है, जो उसके स्टेजेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर से पहुंचने से पहले, तो ये वैल्यू एडेड की चीजें लगती है हर स्टेज पे. तभी जो प्रोडक्ट की है प्राइस इंक्रीज होती जाती है ड्यू टू द लेबर कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट. ठीक है. सो वी कैन से जनरल टर्म्स में कि वैल्यू एडिशन जो है is equals to value of output minus cost of input. Cost of input like cost on input intermediate. ये जो cost of input है, ये इसको हम intermediate consumption भी बोल सकते हैं. intermediate consumption. फाइनल कंजम्पशन तो कंज्यूमर करेगा, एंड यूजर करेगा,